Father, that you take this time, God, and let it be for your glory, Jesus. In your name we pray. Amen. Amen. Yeah. Amen. Thank you so much. Okay, let's welcome Pastor Joseph Marion and the Word of God. Praise the Lord. We welcome you, Pastor. Yeah, I love it that we welcome the word of God, and let's forget about Joseph Marion. मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम खुदावंद के कलाम को वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं. So today we came to 1 John chapter 4. आज हम पहला यूहन्ना उसके चौथे बाब का मुतालिया करेंगे. This chapter is very much loved by many Christians. ये बाब जो है बहुत सारे लोगों को, जो मसीही लोग हैं, उनको पसंद है. We have some definitions, some यहाँ tests. यहाँ पर कुछ तारीफें बयान की गई हैं, कुछ टेस्ट बयान किए गए हैं. And we will also see the fruit of love, the fruit of love. और यहाँ पर मोहब्बत का जो फल है वो भी बयान किया गया है, Because God is love. क्योंकि खुदा मोहब्बत है. If anyone says, I love God, अगर कोई कहता है कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ but hates his brother, और अपने भाई से नफरत रखता है, John says he's a liar. तो यूहन्ना कहता है कि वो झूठा है. So yeah, let's study these verses. Let's study these truths. आए इन हवाला जात की स्टडी करें हम. So the first, 1 John 4 verse 1. We go verse by पहली verse आयत today. हम आयत बाय आयत जाएंगे. पहली आयत को देखेंगे हम. It starts with testing the spirits. ये यहाँ पर रूहों को आजमाने के बारे में शुरू करता है. John is like 95 years old, maybe 90 years old, 95 years old. We don't know. यूहन्ना वो जो था वो 99 वर्ष का था. And he is observing already a lot of apostasy, a lot of denials of the existence of Jesus. उसने बहुत अप एंड डाउन्स चीजें जो थी वो देखी थी, इनकार देखे थे यीशु मसीह के साथ जब उसने खिदमत में की. उसने बहुत कुछ देखा था. And already a lot of sects and a lot of like wrong ways were springing up. उसने जिनसी जो ख्वाहिशात हैं उसका सामना किया और बड़े गलत रस्तों को भी उसने देखा. And he calls it this, there's a spirit of deception on the earth. और उसने कहा कि जमीन के ऊपर जो है, इस दुनिया में धोखेधड़ी की जो रूह है वो काम कर रही है. This spirit of deception today is greater than ever, I believe. वो ये कहता है कि आजकल जो इस दुनिया में रूह काम कर रही है धोखाधड़ी की, वो बहुत बड़ी ताकतवर है. But even 60 years after Jesus died on the cross, there was already this spirit of deception. यीशु मसीह के मसलूब होने के 60 साल बाद भी ये रूह काम कर रही थी. So let's read verse 1. आइए पहली आयत को पढ़िए. John again starts with this word, beloved. यूहन्ना यहाँ से दोबारा इस आयत को शुरू करता है, ए अजीजो. Yeah, he's teaching like a father, right? He's admonishing, he's teaching like a father. उसकी जो तालीम है वो एक बाप की तरह है, बड़ी आजिज़ी के साथ, प्यार के साथ वो कह रहा है, ए अजीजो. Oh, do not believe every spirit, हर एक रूह का यकीन ना करो, but test the spirits to see whether they are from God. बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं. Because many false prophets have gone out into the world. क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं. John says many false prophets gone out into the world. यूहन्ना कहता है कि बहुत सारे झूठे नबी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं. Today we have a big problem. आजकल की जो दुनिया में है उसमें एक बहुत बड़ा मसला है. In the Christian world. मसीही लोगों में, मसीही दुनिया में. Yeah, there is a lot of falseness. There's a lot of fake love, fake prophecy, fake believing. झूठी मोहब्बत, झूठी तालीम और झूठा प्यार.
And John will give us now a test how to know the Spirit of God. और यूहन्ना यहाँ पर हमें एक टेस्ट देता है कि किस तरह से खुदा की मोहब्बत को जाना जा सकता है। But if you look at the verse 1 again, it अगर आप says, पहली आयत को दोबारा देखिए, वो ये कहती है, John says, test the spirits. यूहन्ना कहता है कि रूहों को आजमाओ। We can do that. A true believer can test the spirits. एक सच्चा जो ईमानदार है वो रूह को परख सकता है। And what do we look for? और हमें इसके लिए किस चीज को देखना होगा? Whether the spirits or this spirit, whether it is from God. और हमने उस रूह को परखना होगा कि क्या ये रूह जो है वो खुदावंद की तरफ से है या नहीं है। Is it the Holy Spirit? Is it the Spirit of God? Is it क्या agreeing with what God says in His Word? क्या ये रूह कुदस है? क्या ये खुदावंद की तरफ से है? और जो कुछ वो कह रही है वो खुदा के कलाम से और खुदा से मेल खाती है? But I like the Greek. The Greek gives us a bigger picture when it says tested whether they are from God. लेकिन जब हम इसे यूनानी जुबान में देखते हैं तो इसका बड़ा वाज़िया मतलब निकल आता है। The Greek is ekdo theo, out जो कुछ of इन्होंने God, comes out of God, comes जो कि out खुदा of God. जो कि खुदावंद से निकलता है, खुदावंद के अंदर से जो चीज निकल रही है। Ecto theo, it's 6 times we find this in this chapter, out from God. Did it come out from God? Is it from God? ये जो यूनानी का लफ्ज है ये 6 बार इस किताब में यूज किया गया है कि क्या वाकई ही ये खुदावंद में से निकला है, खुदावंद की तरफ से है ये। 6 times in this chapter we will see it in verse 2, in verse 3, in verse 4, in verse 5, I mean verse 6 2 times, 6 times. और 6 बार ये 6 बार यहाँ पर लिखा गया है। प्लीज कम स्लो वर्स 2 and 3 4 4 and in verse 6 2 times, out of God, from God. 6वीं आयत में 2 बार है। It's so John wants to communicate something very clearly. और यूहन्ना जो है बड़े वाज़िया तौर पर यहाँ पर हमारे साथ बात करना चाहता है। A true believer can discern the spirit and can judge. एक ईमानदार जो है वो रूहों का इम्तियाज कर सकता है और उनको परख सकता है। So now verse 2 is the positive. दूसरी वर्स जो है इसके उल्ट जा रही है, देखिए। By this you know the Spirit of God. खुदा की रूह को तुम इसी तरह से पहचान सकते हो। Every spirit that confesses that Jesus कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह has come in the flesh is from God. मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। You know, if the confession, this is positive, if the confession is that Jesus Christ has come in the flesh. अगर लुइस, अगर बहुत सारे लोगों के माइक अनम्यूट है, अगर आप इनको हैंडल करें लुइस। सॉरी पास्टर। No problem. The issue was that even people were denying that Jesus even existed, you know, agnostic. बहुत सारे लोग इनकार कर रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कभी इस दुनिया में आया था और वो कभी मौजूद था। इस वजह से इस आयत को लिखा गया है। So, you know, that's number one. Positive it has to do with our confession that Jesus Christ lived on this earth. ये पहले नंबर पर है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में रहा, ये हमारा इकरार है। He lived just like you and me. He put on a human body. वो जैसे मैं और आप रह रहे हैं वो इसी तरह से रहा जैसे मैं और आप इंसान हैं, इंसानी जिस्म में। Carpenter. एक वो जो बढ़ाई के तौर पर वो रहा। And then when he entered the ministry, he was a teacher, a master. और जब वो खिदमत में आता है तो वो एक उस्ताद की मानिंद है, वो एक बचाने वाले, निजात देने वाले की मानिंद है। So it has to do with confession, number one. और ये बात जो है ये इकरार करने से है कि यीशु आया, वो हमारे लिए इस दुनिया में आया और हमने इसका इकरार करना है।
Verse 3 is more of a negative. तीसरी आयत जो है वो थोड़ी सी मुखालिफ है इस बात के। Every spirit that does not confess Jesus is not from God. और जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं। So there's no confession, तो यहाँ पर इकरार नहीं किया जा रहा यीशु का। no blood, no cross, यहाँ पर यीशु मसीह के खून का और यीशु मसीह का कोई जिक्र नहीं है। no salvation. यहाँ निजात का कोई जिक्र नहीं है। But what? लेकिन यहाँ पर क्या चीज है? And he says, who does not confess Jesus Christ is जो not कोई यीशु का from God. इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं है। And this is the spirit of the Antichrist, of और which यही- you have heard. और यही मुखालिफ मसीह की रूह है जिसकी खबर तुम सुन चुके हो। You have heard that he is coming, but actually he's already in John's time in the world. बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। So that time, उस वक्त में that's 1900 years ago, already there was this spirit of Antichrist. 19,000 साल पहले भी मुखालिफ मसीह की रूह मौजूद थी। So think about how much stronger it is today, you know, how much stronger this is today. ये किस कदर आज मजबूत और ताकतवर हो गई है ये रूह मुखालिफ मसीह की। How great is the deception that is in this world. ये कैसी अजीम धोखाधड़ी है आजकल के दौर में। The fool said in his heart, there is no God. बेवकूफ ने अपने जहन में कहा कि कोई खुदा नहीं है And he believes it. और उसने इस पर यकीन कर लिया। There's no fear of God. There's so little fear of God in the world today. कोई खुदा का डर नहीं है आजकल की दुनिया में। बिल्कुल थोड़ा सा खुदावंद का खौफ और डर रह गया है। The spirit of Antichrist is everywhere. मुखालिफ मसीह की रूह इस दुनिया में हर तरफ पाई जाती है। The movie industry, the entertainment industry is ruled by the spirit. There's no गलियों spirit. गलियों में बाजारों में आजकल मुखालिफ मसीह की रूह जो है वो हुकूमत कर रही है। The spirit of Christ is ridiculed. ये बड़ी अजीब और गरीब मुखालिफ मसीह की रूह है। So, okay, now we go verse 4. आए हम चौथी आयत पर चलते हैं। 4, 5, 6. I call this the hearing test. पांचवी, छठवीं और सातवीं को मैं ये कहता हूँ कि ये यहाँ पर सुनने का टेस्ट है, सुनने का इम्तिहान है। So John says, you are from God. लेकिन यूहन्ना ये कहता है कि तुम खुदा से हो। Little children, ऐ बच्चों, and you have overcome them. तुम You खुदा won से हो already. और उन पर गालिब आ गए हो। Because greater is he who is in you than he that is in the world. क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। Amen. आमीन। You have overcome him already. आप पहले से ही गालिब आ चुके हो Because you have a confession क्योंकि आपने ये इकरार किया है। that the blood of Christ is good enough, आपने ये कहा है कि यीशु मसीह का खून मेरे लिए काफी है। that Jesus Christ can save the worst sinner on this planet any moment. खुदावंद यीशु मसीह का लहू किसी भी हालत में किसी भी वक्त में एक गुनाहगार को बचा सकता है। That Jesus Christ's sacrifice covers the sins of the world. खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी ने इस दुनिया के गुनाहों को ढांक दिया है। All you need to do is believe in him आपको सिर्फ और सिर्फ उस पर ईमान रखना है, and trust him. उस Make पर him the भरोसा Lord, रखना है and you are an overcomer. और आप गालिब आ चुके हैं। Because when you believe in him, he comes in you. And when he comes in you, he's greater than he that is in the world. जब आप उस पर यकीन रखते हैं तो वो आप में आ जाता है और आप में वो है जो इस सारी दुनिया से बड़ा है। Why is that believers walk around like chickens sometimes? They're so scared. They are so... आजकल के जो ईमानदार हैं वो ब्रायलर मुर्गी वांगू ने क्यों डरे समय लगे फिरते ने ब्रायलर मुर्गी वांगू घबराए। Some Christians are ashamed of Jesus Christ. कुछ मसीही जो हैं यीशु मसीह से बड़ा शर्माते हैं। Why?
क्यों ऐसा है? Because maybe they don't have He who is greater. क्योंकि उनके पास वो अजीम यीशु नहीं है जो इस दुनिया से बड़ा है। Maybe they are not real believers. हो सकता है वो सच्चे ईमानदार ना हो। You know, Christ is so small for them. खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने बड़ा छोटा सा समझ लिया है। But you know, for us, you know, लेकिन हमारे लिए we are crazy about Christ. हम खुदावंद यीशु मसीह के दीवाने हैं। We have Him inside, and that shows on the outside in situations. जो कि हमारे अंदर है और जरूरत पड़ने पर वो ही हमारे अंदर से नजर आता है। Because when situations of life come and the buttons of our lives are pushed, what's inside of us will reveal itself. जब मुसीबतें आती हैं और जो यीशु हमारे अंदर है और मुसीबतें जब हमें मुसीबतों के बटन जो हैं वो प्रेस किए जाते हैं तो फिर यीशु मसीह एकदम से जैसे किसी चीज जो कोई चीज ऑन हो जाती है एकदम से खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर में से जाहिर होना शुरू हो जाता है। Like somebody steps on your foot in Lahore. जैसे कोई आपके कदमों पर चढ़ जाए, ताड़े पैरों पे कोई चढ़ जाए थे And you're like, wow! You know, like, is that वापस Christ? I mean, of course it hurts, but you're not going to say anything bad to that person. तो हम कहेंगे ओए ये क्या हो गया, तो मेरे पैर पर चढ़ गया, लेकिन हम उसे बुरा भला तो नहीं कह सकते। You know, in China, when I lived in China, I used to ride my bicycle for like 1 hour non-stop. जब पास्टर जोसेफ चाइना में रहते थे तो ये 1 घंटे से भी ज्यादा अपनी जो साइकिल थी वो चलाया करते थे। From my house, I rode the bike to our office, which was 28 kilometers away in 1 hour. जो अपने घर से ऑफिस तक 28 किलोमीटर का जो सफर था वो बनता था। It's almost like going with a motorbike, you know, very fast. ये एक मोटरसाइकिल जैसा था कि उसके साथ आप जल्दी पहुंच जाते थे। But in China, you know, there's lots of traffic. It's like Lahore also. I mean, you guys also have a lot of चाइना में बड़ी ट्रैफिक जैम होती है जैसे लाहौर में ट्रैफिक जैम होती है। So a lot of traffic and a lot of like, you know, you have to be very careful how you ride. चाइना में लाहौर में भी आपको बड़े होशियारी से ड्राइविंग करनी होती है, केड़े पासे बंदा आके ताड़े च ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ है पता ही नहीं चलता। So I made it my practice when somebody would honk the horn, you know. तो मैंने अपने आप को आदी बना लिया था जब कोई हॉर्न बड़ी जोर से मारता था। I would shout to them, God bless you. तो फिर मैं उसे कहता था खुदावंद तुम्हें बरकत दे। Of course I was angry. Of course यानी कि मैंने गुस्सा चढ़दा ही कि हॉर्न मारदा पे, लेकिन मैं उन्हें की कह सकना था। I felt like my life was in danger for a moment, but I would scream a blessing. If I had to scream something, I would not scream something bad to them, but I would scream a blessing to them. मुझे ऐसा लगता था एक लम्हे के लिए जैसे मेरी जिंदगी खतरे में है, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेरे पास कोई हल नहीं था। फिर मैं उसे बाबरकत अल्फाज के साथ कहता था खुदावंद तुम्हें बरकत दे, जिसने हॉर्न मार के मुझे डरा दिया था। These things are our decisions, because in our mind, in our hearts, we can be like smiling, but actually we can be like, you know. ये हमारे अपने आप पर मुनहसर है कि हम अपने जहन में क्या गुस्से का फौरन इजहार कर दें या तो हम स्माइली फेस के साथ उसको जवाब दें। But he who is greater, he that is the ruler of the universe, is in me. लेकिन वो जो हमारे अंदर है, वो जो दुनिया का हुक्मरान है, अगर वो हमारे अंदर है, he is my Lord, he is my ruler, and he can help me to control my tongue, control my emotions. वो जो दुनिया का खालिक और मालिक है और मेरे अंदर रहता है, वो मेरे जज्बात को और मेरी बातों को कंट्रोल कर सकता है। And even when we are persecuted, we don't persecute back, but we bless. यहाँ तक कि जब हम सताए जाते हैं तो इसके बदले में हम दूसरे लोगों को सताते नहीं हैं, बल्कि हम उनके लिए बरकत की दुआ चाहते हैं। You know why Christians are so weak in the Western countries? आपको पता है कि मगरबी मुमालिक में मसीही क्यों इतने कमजोर हैं? Because they think they have some rights given to them by the government. क्योंकि उनका ये ख्याल है कि उन्होंने अपने हक जो है कुछ हकूक हैं जो गवर्नमेंट को दे दिए हैं। Oh,
I'm protected by the government. I can be who I want to be. कि मैं वही रहूंगा जो मेरी गवर्नमेंट ने मुझे बना दिया है। Well, Jesus said something. लेकिन यीशु मसीह ने कुछ कहा है। If they persecuted me, they will persecute you. यीशु मसीह ने कहा अगर वो मुझे सताते हैं तो तुम्हें भी सताएंगे। How many people welcome Jesus as the Messiah all the time? Like very few people did that, you know. कितने लोगों ने यीशु मसीह को मसीहा कबूल किया? बहुत कम लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को एज ए मसीहा कबूल किया। And Jesus said something harder. He said, if they hated me, they will hate you. यीशु Without मसीह a ने cause. बड़ी सख्त बात कही कि अगर वो मुझसे नफरत रखते हैं तो वो तुमसे भी अदावत रखेंगे और नफरत रखेंगे। Today's Christianity wants to be on TV. Today's Christians want to be liked. They want to be popular on Facebook and in the world media, you know. आजकल के मसीही फेसबुक के ऊपर लाइव आना चाहते हैं, ठीक है, टीवी के ऊपर आना चाहते हैं, मशहूर होना चाहते हैं। Celebrity, famous pastors writing books and being accepted and making money. बड़े पैसे बनाने वाले पास्टर, किताबें लिखने वाले पास्टर, बड़ी मशहूर शख्सियत जिवें कोई स्टार हुंदा है उवें बनना चाहते हैं। I mean, you know, if they have the spirit of God, praise God. But लेकिन अगर उनके पास वाकई खुदावंद का रूह कुदस है तो मैं इस बात के लिए खुदावंद की तारीफ करता हूं। लेकिन अगर but the spirit of the world brings so much deception that you can have some good but also you can have some bad. लेकिन अगर इस दुनिया की मुखालफे मसीह की रूह के अंदर है, जो धोखाधड़ी वाली रूह है, तो उसमें से हो सकता है कि वो कुछ चीजें अच्छी भी कर देता हो और कुछ चीजें जो है वो बुरी करता हो। So if you see Christ in me, then अगर आप यीशु मसीह को मुझ में देखते हैं तो, and if you see Christ in each other, that's a good testimony. That's the only testimony you need. और अगर आप एक दूसरे में यीशु मसीह को देखते हैं तो यही वो बात है जिसकी हमें आज जरूरत है। You don't need the testimony and the respect of the world. हमें गवाहियों की और दुनिया की इज्जतदारी की जरूरत नहीं है, हमें यीशु की जरूरत है। So this is the hearing test. Let's read verse 5. यहाँ पर जो है वो सुनने का इम्तिहान है। आए 5वीं आयत को पढ़ते हैं। They are from the world. वो दुनिया से हैं। Therefore they speak as of the world. इसी वास्ते दुनिया किसी कहते हैं। As from the world, and the world listens to them. और दुनिया उनकी सुनती है। Okay. They are from the world, therefore they speak as from the world, and the world listens to them. वो दुनिया में से हैं, दुनिया किसी सुनते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। Who are you? आप कौन हैं? You are from God. You are out of God. आप खुदावंद यीशु मसीह से हैं, आप खुदा बाप से निकले हैं। Okay, verse 6, and here is the hearing. 6वीं आयत जो सुनने का टेस्ट इम्तिहान है। We are from God. जो हम खुदा से हैं। He who knows God listens to us. जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है। He who is not from God does not listen to us. जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। And John finishes like this: by this we know the spirit of truth and the spirit of error. इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। Yeah. So here you see this, you know, we listen to each other and we speak the word of God to each other. यहाँ पर लिखा है कि हम एक दूसरे की सुनते हैं और हम एक दूसरे से बोलते हैं। In English we have this proverb: birds of a feather flock together. I don't know in Urdu. यह इंग्लिश में एक मिसाल है कि जड़े उड़न वाले परिंदे ने वो एक साथ ही झुंड बनाकर चलते हैं या उड़ते हैं। Yeah, and this is so true in the body of Christ. ये बड़ी सच्ची बात है। जिवें पंजाबी च ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। Punjabi version also exists. Yeah. Very good. Yeah. So yeah, I found the same things related to you. Okay, Praise. so test the spirits. So this is our responsibility. रूहों का इम्तियाज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। You know, the Holy Spirit gives us witness.
पाक रूह ने हमें गवाही दी है, मदद and गवाह ठहराया है, through the Spirit we can have amazing fellowship, and we know the spirit of truth and the spirit of error. और हम इसके जरिए से गलत रूह का, मुखालिफ मसीह की रूह का, और जो ओरिजिनल रूह है खुदावंद की तरफ से, उसको पहचान सकते हैं। Okay, let's go to verse 7 now. आइए हम 7वीं आयत पर चलते हैं। Now comes the love part of this chapter. that यहाँ God is- पर अब यहाँ पर मोहब्बत के बारे में चंद बातों को बयान किया गया है इन आयात में। Now we want to look at the essence of God. यहाँ पर हम देखेंगे कि हम खुदा की जो खासियत है, हम यहाँ पर उसको देखेंगे। If we can understand this, love is the essence of God. Love is the essence Ye- of God. अगर हम यहाँ पर खुदा की मोहब्बत को, जो कि उसका एक खासा है, उसको जान लेते हैं। Okay, so the same type of from God, the same सेम उसी तरह का जो पहले हमने कहा था कि खुदावंद में से निकला है, खुदावंद में से निकला है। the Greek is the same type of expression, love from God, जो ग्रीक में यहाँ पर मोहब्बत के लिए लफ्ज इस्तेमाल है, उसका मतलब वही है कि खुदावंद में से निकलना। Verse 7. 7वीं आयत, Beloved, let us love one another, for love is from God. ऐ अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। And everyone who loves is born of God and knows God. और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है The और one, खुदा को जानता है। verse 8, the one who जो does मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता। the one who does not love does not know God, for God is love. जो मोहब्बत हमको खुदा से है, वो उससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा। We can say it this way: I cannot believe without loving. मैं ईमान नहीं रख सकता या मैं यकीन नहीं रख सकता बिना मोहब्बत के, Nor can I love without believing. और ना ही मैं मोहब्बत रख सकता हूँ ईमान के। That's why John says this is God's essence. Love is God's essence. यहाँ पर इसलिए यूहन्ना कहता है कि मोहब्बत जो है खुदा का एक बड़ा खासा है। Beloved, let us love one another. ऐ अजीजो आए हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। God in me and खुदावंद God, जो मुझ में है और तुम में है। when we say we have fellowship, जब हम कहते हैं कि हमारी आपस में रफाकत और शराकत है, God in me here in Hungary and God in you in Pakistan, we have वो खुदा जो मेरे साथ हंगरी में है और वो खुदा जो आपके साथ पाकिस्तान में है, उसकी आपस में रफाकत शराकत है हमारी एक दूसरे के जरिए से, खुदा के जरिए से। You can know I love you. आप जान सकते हैं कि मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ। Because my love is not motivated by my own self will or self, क्योंकि मेरी जो मोहब्बत है वो अपनी तरफ से नहीं है जो मैं आपसे करता हूँ, motivated by God's Spirit. लेकिन ये खुदावंद का पाक रूह है जिसने मुझे उभारा है कि मैं आपके साथ मोहब्बत को जाहिर करूं। It's the outflow of His Spirit through my life is love. ये उसकी रूह का एक बहाव है, रूह कुद्दस का, जो आपकी तरफ है। Okay, let's go more. Verse 9. आए आगे चलते हैं 9वीं आयत पर। By this the love of God was manifested in us. जो मोहब्बत हमको खुदा से है वो उससे जाहिर हुई, that God has sent His only begotten Son into the खुदा world, ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा, so that we might live through Him. ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। Again, दोबारा से, live through Him. ताकि हम उसके वसीला से जिंदा रहें।
not live through the world system, live through, ना के हम इस दुनिया के वसीला से जिंदा रहें, ना इस दुनिया के लिए जिंदा रहें, बल्कि खुदा के वसीला से और उसके लिए जिंदा रहें। There is a purpose of the manifestation of God's love. खुदावन की मोहब्बत का हमें जाहिर होने का एक खास मकसद है, that we would become partakers of this life and live our life through him. कि हम खुदावन की मोहब्बत को लेकर इस दुनिया के साथ वही मोहब्बत जो खुदा ने रखी, हम भी उस मोहब्बत में हिस्सेदार बनकर इस दुनिया में मोहब्बत रखें। Oh, I love God. अगर हम कहते हैं मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, But I have something better for us. लेकिन पीछे कुछ और ही चल रहा होता है। Verse 10. 10वीं आयत, In this is love, not that we loved God, मोहब्बत इस में नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, not that we loved God. Wow. इसमें नहीं है कि हमने खुदा से मोहब्बत की, But that he loved us and sent his son to be the propitiation for our sins. बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। He's like kind of like saying, I love God. If you say I love God, it's nothing. अगर आप ये कहें कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं तो बस इतनी भी करी गाल है, But first इससे आगे कुछ नहीं। understand how much God loves you. लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि खुदा ने आपसे किस कदर मोहब्बत रखी है। He loved us so much that he didn't just sing songs about his love for us. उसने अपनी मोहब्बत का जो हमारे साथ है उसका एक सिर्फ गीत ही नहीं गाया कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उसने करके दिखाया ऐसा। But he gave his life for us. बल्कि उसने अपनी जान हमारे लिए दे दी है। He was a missionary. Jesus was a missionary. He came on a mission and he completed his mission. यीशु मसीह एक मिशनरी था, वो एक मिशन पर आया और उसने अपने उस मिशन को पूरा किया। And that's why this verse says, in this is love. This is true love, that he loved us. और इसी में सच्ची मोहब्बत है कि उसने पहले हमसे मोहब्बत की है। God so loved us. Where do we see this so love? खुदावंद हमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है और ये मोहब्बत हमें किस जगह पर नजर आती है उसकी? Of course, in John 3:16, God so loved the world. ऑफ कोर्स यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। He loved us so much. उसने हमसे अजीम मोहब्बत रखी, बहुत ज्यादा मोहब्बत रखी। The extent of his love is like we cannot measure it. We cannot हम उसकी जो मोहब्बत है उसको किसी पैमाने से नाप नहीं सकते, कोई ऐसा पैमाना नहीं है। When you look at Jesus on the cross and there are the two thieves, right? जब आप यीशु मसीह को देखते हैं तो उसके दाएं बाएं 2 चोर थे। You will see the extent of God's love. उन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को रिसीव किया। Today you shall be with me in paradise. तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। Did he believe? क्या तुम ईमान रखते हो? He believed. हमारा ईमान है कि हाँ, He received. उसने यीशु मसीह को कबूल किया और अपनी निजात को कबूल कर लिया। Okay, verse 11. 11वीं आयत, Beloved, if ऐ God अजीजों, so loved us, we also ought to love one another. जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। It sounds like he's saying love with God-like love. यहाँ पर ऐसे समझ लग रही है कि किसी दूसरे से ऐसे मोहब्बत रखें जैसे आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं। Because John says, look at God's love. This यूहन्ना soul, कहता है कि खुदावंद की तरफ से देखिए, this azim love, this great love. ये जो बड़ा अजीम और बड़ी मोहब्बत उसने हमसे की, उसके तरफ देखो।
we ought to love one another with this kind of a love. Wow. और हम पर फर्ज है कि हम भी सेम वही मोहब्बत एक दूसरे से रखें। I mean, these verses are very deep. They are very ये amazing. ये बहुत गहरी आयत है, अगर आप इसको बड़ी गौर से पढ़ें तो। You know, there was a message I preached on the soul love of God. God's soul. मैंने एक बार एक जगह पर मैसेज शेयर किया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। He didn't only love Israel. उसने सिर्फ इस्राएल से ही मोहब्बत नहीं रखी। Some people say, "Oh, God really loves America because Americans are so rich." कुछ लोग ये कहते हैं कि खुदा ने सिर्फ अमेरिकी लोगों से बड़ी मोहब्बत की है क्योंकि वो बड़े अमीर हैं। Then God must not love Pakistanis because Pakistanis are so poor. और खुदा उनको पाकिस्तान की कोई परवाह नहीं है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं रखता। No, people totally misunderstand and misinterpret that. बहुत सारे लोग इस बात को गलत बयान कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। Because God loves everyone. क्योंकि खुदावंद हम में से हम सबको प्यार करता है। I would say the poor first. और मैं ये कहूंगा कि गरीब सबसे पहले आता है जिनको खुदा मोहब्बत करता है। If you read the Beatitudes, अगर आप खुदावंद के उस करदार का मुताबिक हैं you understand this deeply. तो आपको बड़े गहरे तौर पर इसके बारे में जानने को मिलेगा। Okay, verse 12. 12वीं आयत। No one has beheld God at any times. खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। This is interesting. ये बड़ी जबरदस्त बात है यहाँ पर। When we did soul winning in China, जब हम चाइना में थे और वहां पर मुनादी कर रहे थे, every week 2 times we would go to university campuses and talk to students about God. हर हफ्ते में 2 बार हम यूनिवर्सिटीज में जाते और वहां पर स्टूडेंट्स के साथ यीशु मसीह के बारे में बात करते। I spent 9 years in China. मैंने पास्टर जोसेफ ने 9 साल चाइना में खिदमत की है। And every week we would go out soul winning. We would speak to students about Jesus, about God. Every और week. हर हफ्ते हम यूनिवर्सिटी में जाते और स्टूडेंट्स के साथ यूनिवर्सिटी में बातचीत करते यीशु मसीह के बारे में। Some people were like, "How come your church is so big?" और फिर लोग कहते थे कि आपका चर्च कितना बड़ा है। You want a big church? क्या आप बड़े चर्च चाहते हैं? We go and speak to people about God's love and God's care. जाएं और लोगों के साथ यीशु मसीह के मोहब्बत के बारे में बात करें और लोगों की फिक्र करना शुरू करें। And people will believe and they will join your church. They will come to your church. लोग ईमान लाएंगे और वो आपके चर्च का हिस्सा बन जाएंगे। So that's how it happened. और ये इस तरह से होता है। But this is the testimony. ये यहाँ पर एक गवाही है। No one has beheld God at any time. कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। And when the Chinese people would say, "Oh, God doesn't exist," और जब चाइनीज लोग कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, they would say, "Show me God. If you show me God, I will believe." और वो ये कहते थे अगर तुम मुझे खुदा दिखा दो, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूँ तो मैं ईमान ले आऊंगा। I want to see him and then I believe it. मैं उसे देखना चाहता हूँ फिर मैं ईमान ले आऊंगा। And I said, "Oh, you can see him." और फिर मैं उन्हें कहता है कि आप उसे देख सकते हैं। I can show you God. मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ खुदा। But you got to believe if you see it. लेकिन तुम्हें ईमान रखना होगा अगर तुम उसे देख लेते हो तो। And look at this verse 12. आए 12वीं आयत को देखिए। If we love one another, अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, God abides in us. तो खुदा हम में रहता है। And his love is perfected in us. और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई है। By verse 13, by this we know that we abide in him and he in us. चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में।
because he has given to us the Holy Spirit. क्योंकि उसने हमें अपना रूहुल कुदस दिया है। You know, so these are the two witnesses. ये दो गवाह हैं, One is love, मोहब्बत, the other is the Holy Spirit. दूसरा रूहुल कुदस। This is how we know that we abide in him. इस तरह से हम जानते हैं कि हम उसमें कायम हैं, We love one another, एक दूसरे से मोहब्बत रख के, and because he has given us the Holy Spirit, and the Holy Spirit is indwelling us. क्योंकि उसने हमें रूहुल कुदस दिया है जो हमें बसता है, फिर वो हमें बताता है। I met people that said to me, "Oh, I'm filled with the Holy Spirit," but they could not love the brother. मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन वो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखते। Question mark. How is that possible? I ये don't, ये हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि कैसे ये मुमकिन है। by this we know that we abide in him and he in us, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें कायम हैं और वो हम में कायम है, because we love the brethren, we love one another, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं and we have fellowship through his Holy Spirit. और हमारी उसके साथ रफाकत और शराकत है। And because we have this fellowship, we have a witness. क्योंकि हमारी उसके साथ रफाकत और शराकत है, हम और इसी वजह से हम फतहयाब हैं। Verse 14, 15वीं आयत, and we have beheld and bear witness that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. We have a testimony. 14वीं आयत, और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा है। Jesus must increase, I must decrease. यीशु मसीह बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। My testimony is Jesus. मेरी गवाही यीशु होनी चाहिए। Whoever, verse 15, whoever confesses that Jesus is the Son of God, जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, God abides in him, खुदा उसमें रहता है and he in God. और वो खुदा में। Verse 16, 16वीं आयत, and we have come to know and have believed the love which God has for us. जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए हैं और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है। God is love, and the one who abides in love abides in God, and God और जो abides. मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। Okay, a few more verses. Verse अगली 17 and 18, again, it's positive and then negative. मुखालिफ हैं ये दोनों वर्सेस 17वीं और 18वीं आयत। Here we see the fruit of love. यहाँ पर हम मोहब्बत का फल देखते हैं। It says, by this, love is perfected within us, with us. इसी सबब से मोहब्बत हमें कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। Okay, so let's read it portion by portion. What I read it in English, and then maybe this is the positive one. By this, love is perfected with us, that we may have confidence in the day of judgment, because as he is, so also are we in this world. इसी सबब से मोहब्बत हमें कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। And here's the negative. There is no fear in love, मोहब्बत में खौफ नहीं होता, but perfect love casts out fear, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, because fear involves punishment, क्योंकि खौफ से अजाब होता है and the one who fears is not perfected in love. और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं होता। We love हम मोहब्बत करते हैं because he first loved us. क्योंकि उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी। That's verse 19. ये 19वीं आयत है। We love because he first loved us. हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। Beautiful. बहुत खूबसूरत आयत है ये।
I'm not loving because I want to look good in the मैं eyes इसलिए of मोह- others. मैं इसलिए मोहब्बत नहीं रखता कि मैं थोड़ा सुंदर दिखना चाहता हूँ. My मोtivation to love and to be one with Christ is this knowledge that He first loved me. मेरा जो दूसरे लोगों से मोहब्बत रखना है या मोहब्बत है, वो इस बात में है कि मैं इस बात को जानूं कि पहले खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है. Yeah, even before I was born, even before, the existence of इससे पहले कि मैं पैदा होता या दुनिया की और चीजें थी, उसने मुझसे मोहब्बत रखी. we love because He first loved us. हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि उसने पहले हमसे मोहब्बत रखी. Okay, we finish. Verse 20. 20वीं आयत हमने ऑलमोस्ट खत्म कर. If Yes. someone says, I love God, अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ and hates his brother, he's a liar. और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है. And the one who does not love his brother whom he has seen cannot love God who him has not seen. क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता. Beautiful. बहुत Common खूबसूरत sense, आयत है. right? यह सादा सी आम फहम बात है. Even anybody can understand this. हर किसी को इसकी समझ है. My little daughter, we were reading this verse together and she understood this. पास्टर जोसेफ की छोटी बेटी और पास्टर ये मिलकर आयत पढ़ रहे थे और हत्ता कि उसे भी इस आयत की समझ आ गई. Last verse 21. 21वीं आयत, आखिरी आयत. And this commandment we have from him. और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है या who loves God should love his brother also. जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे. This is my commandment, Jesus said. यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा हुक्म है That you love one another. कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो. Wow. That Amazing. your joy may be full. ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. You want joy? आप खुश रहना चाहते हैं? What happened with joy in the churches? आजकल चर्चों के अंदर क्या हो गया खुशी को खुश रहने के ताल्लुक से? Some churches are so serious, everybody's so serious, nobody's smiling anymore. कुछ लोग जो हैं वो बड़े सीरियस हैं, किसी के मुंह पर स्माइल नहीं है, बड़े सीरियस वो नजर आते हैं. It's like, oh, another thing I have to do because if I don't do it, people will say something, और लोग कहते हैं अच्छा अगर मैं ना कीता ते लोकी कि मैनू कहणगे, ऐ ना कीता ते लोकी कि मैनू कहणगे. Jesus said, I want your joy to be full. I want you to have full joy. खुदावंद ये चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. And when the brothers live together in unity and they love one another, जब भाई बाहम मिलकर रहते हैं तो वो खुश होता है और तभी हमेशा की जो सच्ची खुशी है वो आती है. That there will be joy and there will be a vision. जब हम मिलकर रहेंगे तो तभी खुशी आएगी, विजन भी वहां पर ही आएगा. Yeah, as Brother Richard Amen. would say, a vision. If you have a vision, God will bring the provision. अगर आपके पास विजन है तो खुदावंद उसको पूरा करने की कुदरत रखता है. Amen. Amen. So this chapter is amazing. Amen. I mean, I want to encourage all of us to meditate with these verses. मैं ये सब लोगों से इल्तिजा करूंगा कि आप इसको दोबारा से पढ़िएगा, इसको गौर कीजिएगा इस बात पर दोबारा से. One of the best things you can do for yourself, go to sleep with the Bible verse in your head. सबसे अच्छा काम जो है वो आप ये कर सकते हैं कि सोते हुए अपने सिर दे उत्ते बाइबल रख लो. How many of you are like this? Oh, I gotta sleep. और कितने लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं कि सोते सोते भी बाइबल पढ़ने की कोशिश करें वो. But I like this. I take a pill, the Bible pill. I just take one verse and I keep reading it or thinking about it in my head, meditating.
मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि एक वर्स ले लेता हूँ और बार बार उस पर सोचता रहता हूँ उस पर। I want to understand that God is love. हम कभी भी ये ना जान पाते कि खुदा किस कदर मोहब्बत रखते हैं हमसे, I want अगर to उसके कलाम में ना how या जो to कुछ love one another, how to love my brethren. मैं कभी भी ये जान ना पाता अगर यीशु मसीह मुझसे मोहब्बत ना रखता कि कैसे लोगों से मोहब्बत रखी जाए। I want the Holy Spirit to bring forth Christ in my everyday walk, in my everyday life, that people मैं can ये चाहता हूँ कि रूहुल कुदस मेरी जिंदगी में यीशु मसीह को आगे लेकर आए रोजमर्रा की जिंदगी में। oh Lord, आमीन। help these students. Thank you. ऐ पाक रूह खुदावंद सारे स्टूडेंट्स की मदद करके वो ऐसा कर सके। Help me, Lord. Help me, Lord. खुदावंद तू मेरी मदद करके मैं ऐसा कर सकूं। Okay, amazing students, amazing class. Thank you for loving अमेजिंग God. स्टूडेंट्स, अमेजिंग क्लास और खुदावंद को मोहब्बत करने का शुक्रिया। Yeah, you know, आमीन। we give our time to God. That's like one of the best way to show our love. We give our हम अपना वक्त खुदा को देते हैं, इससे बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती जिसके जरिए से हम खुदावंद को अपनी मोहब्बत जताएं। yeah. God bless you. आमीन। या खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू।